Let us begin our revisions. We have already done three chapters from Moments. The first one, The Lost Child, second, Adventures of Toto, and third, Iswaran the Storyteller. Right? And I also had informed you that most of the time, when we talk about the supplementary books, whether it is in ninth or 10th or 12th standard, we have character sketch, theme, ये हमारे जो है यू कैन एक्सपेक्ट। एंड अगर ऐसा कोई चैप्टर होता है जिसके अंदर आपका जो है कैरेक्टर नहीं है, बट यस द थीम इज वेरी रेलेवेंट, तो देन you can expect a message or theme based questions from such chapters. The next one which I have planned it is In the Kingdom of Fools. Then we have The Happy Prince and The Last Leaf. That's what I have planned it for today. So let us start with the In the Kingdom of Foods. Now सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि the chapter's name is In the Kingdom of Foods. Why? Means you may be having a question which says justify the name. This is because ये जो story है which we have read is set up in a kingdom जहां लोग जो थे they were all fools, those who did not use their brain. So that is why the name of the chapter is In the Kingdom of Fools, right? तो अगर justification आता है तो आपको लिखना है that the story revolves around a kingdom where the king and his subjects are fools. And if this is a long question, 6 marks का question है, then you have to tell that how the foolish king had changed the working culture. Night को दिन बना दिया था, दिन को रात बना दिया था, and how a thief was saved just because the king wanted justice and he gave a wrong justice. ये आपका जो है इसमें आएगा. Next is the consequences of, if you see, there are some themes written. Contrast between wisdom and folly. मतलब बेवकूफी और समझदारी के बीच में जो फर्क है. The consequences of foolishness. बिना सोचे समझे, when we say think before you speak, मतलब कि अपने एक्शन से पहले you should always think. Act wisely. We need to understand and then we need to do it. So, in this chapter, in this story, first of all, we have a person, the king, uske minister. Secondly, we have a disciple, a foolish person again, an insensitive man, and third one is a wise man. The next one is a wise man. जो king है, he wanted that he should control his kingdom. He wanted something new. He wanted to show his power. Therefore, he announced that the day activities will be done at night and the night activity, that is sleeping, should be done during day. Now the people, why the people, they did not have any common sense. They just followed the instructions. उनको जो instruction दिए जाते थे वो follow करते थे because they were scared. They were scared to raise their voice. उनको अपनी आवाज उठाने में डर लगता था. And इसीलिए they just followed the king's order. पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि जो वहां के लोग थे, why did they follow the ruler? Because they were scared. Now ड्यूरिंग द डे इट वुड बी डेजर्टेड. पूरा जो किंगडम था वो बिल्कुल खाली रहता था. इवन यहाँ तक कि वो कहते हैं कि जो एनिमल्स थे, दे इवन डिड नॉट मूव.
whereas at night all the activities were full-fledged. One day there was a person, a wise man, who came over there along with his disciple. वो अपने डिसिपल के साथ वहां पहुंचा, एंड टू देयर सरप्राइज द एंटायर एरिया वॉज डिजर्टेड, बिल्कुल साइलेंट था, उनको समझ नहीं आया। लेकिन जैसे ही रात होने लगी, द एंटायर स्टेट बिकेम बिजी। और फिर उन्होंने एक और चीज देखी, और वो ये था कि द थिंग्स वर सोल्ड एट 1 पैसा, 1 डुड्डू। मतलब आप गोल्ड खरीदते हो, घी खरीदते हो, या फिर आप एक छोटा सा पत्ता खरीदते हो, एवरीथिंग वाज 1 डुड्डू, विच इटसेल्फ इज फुलिशनेस। अब जो डिसिपल और जो गुरु थे थोड़े दिन वहां रुके, लेकिन गुरु को समझ आ गया कि यहाँ पर मैं रुकूंगा तो मुसीबतों का पहाड़ अपने साथ लाऊंगा, आई बी समवेयर, आई बी ट्रैप्ड। Therefore, he decided to leave the kingdom. आपके पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन, why did why did the guru decide to leave the kingdom? Because he was wise, he understood. लेकिन डिसिपल को यहाँ सब कुछ इतना सस्ता मिल रहा था, तो उसको लगा मैं यहीं रहूंगा। गुरु के समझाने के बावजूद, मतलब कभी कभी हमें बड़े लोगों का कहना मानना चाहिए, उसने कहना नहीं माना, एंड ही स्टेड बैक। he ate and ate and he became like an wild ass, खूब मोटा ताजा बन गया। ऑन द अदर हैंड, उनके वहां पर देयर वाज एन इंसिडेंट इन विच a person had entered others house to steal। अब कोई चोरी करने आएगा तो आप उसको क्या सजा दोगे? उसको आप बिठा के क्या आरती रखोगे? नेचुरल है कि द पर्सन शुड बी पनिश्ड। ये पेपर में एक क्वेश्चन आता है, अभी बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन। बट when the robber tried to enter, the wall fell on him and he was dead। और उस रॉबर का जो, उस थीफ का जो ब्रदर था, उसने क्लेम किया कि ये वॉल जो है इतनी कच्ची थी, और मेरा भाई तो अपना एंसेस्ट्रल, अपना धंधा, अपना प्रोफेशन कर रहा था। चोरी कोई धंधा होता है? नाउ द किंग खुद को बहुत महान समझता था। ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। तो पहला कल्प्रिट था उस मकान का मालिक, मर्चेंट। बट उसने कहा कि मेरी गलती थोड़ी है, मैंने थोड़ी बनाया है, ये मेजन की गलती है, मिस्त्री की गलती है। सो द मेजन वॉज कॉल्ड। बट मेजन ने कहा मेरी गलती नहीं है, ये ब्रिक ले जब मैं ले कर रहा था तो देयर वॉज एन ओल्ड गर्ल जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसीलिए गलत हुआ है। शी वॉज कॉल्ड। उसने कहा मेरी गलती नहीं है, मैं तो ऊपर नीचे इसलिए कर रही थी क्योंकि जूलर मेरे जूल्स नहीं दे रहा था। जूलर को बुलाया तो जूलर ने कहा मैं क्या करूं, अमीर आदमी जो है मुझे तंग कर रहा था, उनके घर में शादी थी। और पता लगा वो अमीर आदमी और कोई नहीं, वही मर्चेंट जिसके घर का दीवार गिरा था, द मर्चेंट हुज वॉल हैड फॉलन ऑफ, उसी के फादर थे। सो द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व फ्रॉम द मर्चेंट, देन इट मूव टू द person who was making the who had made the wall। उसने डाला on the girl who was coming over there for dancing girl। उसने आगे डाला on a jeweler, एंड jeweler ने दोबारा से उसी मर्चेंट के ऊपर डाल दिया कि इनके घर में शादी थी तो वो लोग मुझे तंग कर रहे थे, इसलिए मैं उस लड़की के जो गहने थे वो मैं दे नहीं पाया। Now, the king, being a very justified person, placed it, he ordered that ये जो मेजन है, सॉरी ये जो मर्चेंट है, ही शुड बी हैंग्ड। मर्चेंट ने कहा कि सर मेरी क्या गलती है, तो मेरे फादर ने कहा था, तो मैं मेरे फादर की गलतियों को मैं क्यों भुगतूं? तो किंग ने कहा अगर तुम अपने फादर के पैसों को ले सकते हो तो यू शुड ऑल्सो टेक हिज सिन। और इस तरीके से दिस पर्सन वॉज सपोज टू बी हैंग्ड। लेकिन जब हैंगिंग की तैयारी हो रही थी तो राजा ने जो है
उसको बोला, सॉरी, राजा के एक दरबारी ने उसको बोला, कोर्टियर ने बोला दैट ही वॉज टू थिन टू बी हंग, somebody who is fat, somebody who is healthy should be hung. अब राजा जो था, ही वॉज वेरी सबमिसिव, वो दूसरों की बातों में आ जाता था, ही वॉज टू सबमिसिव, एंड इसीलिए ही आस्क्ड समवन हु इज हेल्दी टू बी ब्रॉट, एंड अल्टीमेटली वो जो डिसिपल था, जो खा खाकर वहां मोटा हो गया था, ही वॉज ब्रॉट एंड ही वॉज सपोज टू बी एग्जीक्यूटेड, उसको एग्जीक्यूट करना था। अब उस डिसिपल को समझ आया दैट इट इज दी फूलिश, मतलब कि किंगडम, और उसके गुरु ने बोला था कि दीज पीपल आर फूलिश, एनी टाइम यू कैन फॉल इनटू ट्रैप। और इस तरीके से व्हाट हैपेंड इज द डिसिपल वाज ट्रैप्ड। अब उसने अपने अंतर मन में, इन हिज कंसाइंस ही कॉल्ड अप हिज गुरु, हिज गुरु वाज अ ग्रेट पर्सन, उनको मतलब कि अंतर्मन पढ़ना आता था, वो आए वहां पर। एंड व्हेन दिस मैन वाज सपोज टू बी एग्जीक्यूटेड, उन्होंने आकर ऐसे दिखाया एज इफ ही वांटेड टू डाई। दिस इज वेयर हिज विजडम कम्स, यही उनका वो विजडम आता है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट मुझे मरना है, फिर मेरे डिसिपल को मरना है। नाउ द किंग वाज वेरी मच अम्यूज्ड दैट व्हाई अ पर्सन वांट्स टू डाई। अब एज आई टोल्ड यू कि जो राजा था, ही वॉज वेरी सबमिसिव, वो बहुत ही कान का कच्चा था, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता था। तो गुरु ने उसको एक कहानी सुनाई, एंड ही सेड दैट द दिस किंगडम इज वेरी पायस, वेरी होली, नोबडी हैज बीन हार्म्ड, एंड इस किंगडम से जो पहला इंसान मरेगा, दैट पर्सन वुड बी बॉर्न एज अ किंग, और उसके बाद जो मरेगा वो बनेगा मिनिस्टर। अब राजा को इतना तो सोचना चाहिए कि एक इंसान को मर के दोबारा जन्म लेने में, दोबारा से मतलब कि राजा बनने में 20 साल और लग जाएंगे। उसने नहीं सोचा। दिस इज अगेन वी कैन से ही वॉज फूलिश, वो बेवकूफ था। एंड उसने अपने मिनिस्टर को बोला दैट आई डोंट वांट एनीवन टू बिकम द किंग ऑफ दिस किंगडम, सो आई विल डाई फर्स्ट। अब वो आज मर के कल थोड़ी पैदा हो जाएगा, और कल पैदा भी होगा तो बड़ा हो, एक दिन में बड़ा हो जाएगा, तो सोचना चाहिए था। बट ही डिड नॉट थिंक, देयरफॉर ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूटर, जिसको फांसी लगानी थी, जिसको कहा कि मुझ मतलब कि कल जो चुपचाप तुम्हारे अंदर आएगा तुम उसको मार दो। Now the executor did not know that it was the king. In the morning, the people saw the dead body of the king and his minister. पहले तो वो लोग शॉक रहे, but then they realized कि जो राजा था, he was completely fool. And they requested the guru and the shishya to become the king of that state and the minister. पहले तो गुरु माने नहीं, लेकिन बाद में वो इस शर्त पर माने, ही अग्रीड ऑन दिस कंडीशन दैट एवरीथिंग विल बी एज इट इज, दैट इज दिन दिन रहेगा, रात रात रहेगी, देयर विल बी नथिंग लाइक दैट। तो ये जो एंड हमारा आता है क्लास 9, इट शोज दैट वी आर नॉट सपोज टू टच द नेचुरल फिनोमिना। जो आपका नेचुरल फिनोमिना है, जो भगवान ने हमें दिया है, दैट शुड ऑलवेज बी रेस्पेक्टेड। एंड ऑफ कोर्स विजडम, क्रिटिकल थिंकिंग, साउंड जजमेंट। द किंग डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट नो वन कैन डाई टुडे एंड बी born tomorrow and day after tomorrow he can become a king। अगर आज मरेगा तो भी 20 साल लगेंगे उसको। तो ही वॉज कंप्लीटली फूलिश। एंड देन किसी भी रॉबर को, मतलब किसी भी चोर को इस ग्राउंड पर छोड़ना कि वो अपना काम कर रहा था, तो चोरी कोई काम नहीं होता, चोरी जो है वो क्राइम है। एनी वे इट इज अ क्राइम, छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, इट इज अ क्राइम। और वो इतने
एंड से बोल रहा था ही वॉज डूइंग हिज एंशियंट बिजनेस, तो ही शुड हैव बीन पनिश्ड। तो आपके पेपर में इस चैप्टर से जस्टिफाई, देन डू यू अग्री, द किंग वॉज फुलिश, ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यू हैव टू गिव द रीजन दैट व्हाई यू फील द किंग वॉज फुलिश और द guru was wise. So this is the first chapter in the kingdom of fools. Now in the chapter we have two people. One is John C. and her friend Sue. And there is one more character, that is a master painter Behram. अब जो जॉन्सी एंड स्यू है, they are living together, they have shared an apartment, and both are very close to each other. In fact, Sue जो है, she looks after Johnsy just like an elder sister, मतलब एक बहन की तरह वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इट्स मतलब कि थोड़ा सा जो है, जॉन्सी बीच में बीमार हो जाती है, एंड शी मतलब कि कैचेस निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेना, इट स्टार्ट्स विथ PNEUMONIA। अब वो जो है, शी इज ऑन बेड, एंड आपको पता है कि नॉर्मली जब हम लोग बीमार होते हैं तो वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, वो सबके साथ होता है। सबके साथ होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दोज हु गेट इल बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको लगता है कि नो नो नो, उनके साथ तो बहुत कुछ बुरा हो गया। एंड दैट इज वेयर जॉन्सी ऑल्सो हैज दैट फीलिंग। सेकेंडली, शी इज अ टीनेजर। तो टीनेजर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि दे गेट डिसअपॉइंटेड इजीली। मार्क्स अच्छे आ गए, खुश हो गए, मार्क्स कम आ गए, ओ माय गॉड हम तो फेल हो गए। बिकॉज दे आर टीनेजर्स, दे कैनॉट बैलेंस बिटवीन द गुड एंड बैड। जॉन्सी भी ऐसी है। तो जॉन्सी जो है, व्हेन शी फॉल्स इल, तो शी फील्स दैट शी वुड डाई। लेकिन उसके इस थॉट के पीछे देयर इज अ पेक्यूलियर रीजन। और वो पेक्यूलियर रीजन क्या है? वो पेक्यूलियर रीजन ये है कि सामने देयर इज अ क्रीपर, और उस क्रीपर में जो है पत्ते हैं जो धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। अभी आजकल जो सीजन है, इट्स द सेम थिंग विच वी कॉल एज फॉल। तो पत्ते जो है वो नीचे गिर रहे हैं, लेकिन उसको लगता है कि ये जो पत्तों का गिरना है, मतलब दैट इज समथिंग वेरी अम्यूजिंग एंड वेरी पेक्यूलियर। ये पत्तों का गिरना जो है, दैट इज रिलेटेड टू हर ओन डेज ऑफ लाइफ। और उसको लगता है कि जब ये लास्ट लीफ गिर जाएगा तो शी वुड ऑल्सो बी डेड। अब यहाँ पर क्या है, क्लास 9, देर इज वन क्वेश्चन एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल, कि आर विल पावर जो होता है, इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारा जो विल पावर होता है ना, वो बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास में अगर विल पावर नहीं है, मतलब अगर हमें वी डोंट वांट टू लिव, देन even the best doctors cannot give you any medicine। तो एक होता है, हिंदी में कहते हैं कि उसे जीने की इच्छा नहीं है। तो द विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट while यू आर रिकवरिंग। अगर आप चाहते हो आपको जल्दी होना है, तो आपके अंदर वो विल पावर होना चाहिए।
इफ यू थिंक मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मेरे सर में दर्द है, तो आपके सर में, पैर में, हाथ में, सब जगह दर्द होगा। एंड इफ यू वांट दैट नो आई शुड स्टैंड ऑन माय फीट, देन यू वुड गेट इमीडिएटली, आपके अंदर वो चीज आई। दिस इज ट्रू। तो अब क्या होता है कि उसका जो विल पावर है उसके अंदर आ गया, सिंस शी वाज ऑन बेड, तो शी हैड डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग। उसके अंदर जो है पेजिस्मेटिक ख्याल आ रहे थे। शी वाज हैविंग द पेजिस्मेटिक अप्रोच। पेजिस्मेटिक मतलब नेगेटिव। स्यू, जो उसकी फ्रेंड थी, जो उसकी बहन के जैसी थी, शी वॉज वेरी मच वरीड कि वाई शी वॉज नॉट गेटिंग वेल। उसने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने वही कहा कि उसके अंदर शी इज नॉट हैविंग द विल पावर टू लिव। अब स्यू वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि उसकी जो फ्रेंड थी, शी हैड डेवलप दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। अपनी तरफ से एज अ गुड फ्रेंड, शी ट्राइड टू चेरिश हर। उसको खुश करने की उसने पूरी कोशिश की। गाना गाती थी, विसिल बजाती थी। शी केम अप विद द कैनवास इन हर रूम, क्योंकि दोनों पेंटर्स थे, बट दे वर नॉट रिच, तो दे हैड टू वर्क हार्ड। लेकिन जॉन्सी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एंड अल्टीमेटली एक दिन उसने देखा कि ऑन द ऑपोजिट वॉल ओनली वन लीफ इज रिमेनिंग। अब वहां पर जो है सिर्फ एक ही लीफ जो है वो रिमेनिंग था। और उसको लगा कि अगर ये लीफ गिर गया तो देन हर डेथ इज श्योर। और उसका उसकी जो कंडीशन थी दैट वाज डिटीरियोरेटिंग इन द सेम वे। Johnsy, sorry, Sue told this her worries to one of other person called Behrman, who was living in the ground floor. He was a painter, but वो old थे. Next day when Johnsy woke up, Sue बहुत डरी हुई थी क्योंकि रात को बारिश भी हुई थी। There was also wind. उसको लगा कि the leaf must have fallen. But it was to their surprise that the leaf was still there, very green and fresh. मतलब वो इतना था कि they could not identify whether it was real or real. When the doctor came, they found Johnsy to be better. And Johnsy के अंदर भी वो, she had a change of heart. And she said she apologized to Sue कि वो जो है उसके साथ गलत तरीके से बर्ताव कर रही थी, and that she should not have spoken. लेकिन डॉक्टर ने उनको एक बात बताई कि जो बेहरमान थे, he died due to pneumonia that morning. And it was said that he was there in the rain. रात को जब बारिश हुई थी तो वो बाहर थे, उनके कपड़े गीले थे। और उनका जो चौकीदार था, he had found him there. Janitor had found over there, and he could not be saved. एंड देन दे रियलाइज कि वो जो पेंटिंग, वो जो लीफ वहां पर बनी हुई थी, दैट लीफ वॉज एक्चुअली नॉट ओरिजिनल, बट दैट वॉज द पेंटेड वर्जन, दैट इज द मास्टर पेंटिंग ऑफ बहरमान। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मास्टर पेंटिंग? बहरमान का एक ड्रीम था कि किसी एक दिन उनकी पेंटिंग इतनी सक्सेसफुल होनी चाहिए, इट शुड बी, जैसे हम अगर हम कहते हैं लेनार्डो विंची, विच से लेनार्डो विंची, तो हमारे दिमाग में क्या आता है बता सकते हो? मोनालिसा। द मोमेंट वी रिकॉल अ पेंटर, हमारे सीधा हमारे जो है नेक्स्ट मोमेंट आता है हमें दिस, राजा रवि वर्मा या फिर एम एफ हुसैन। तो इमीडिएटली वी रिकलेक्ट दैट वर्ड, दैट नेम टू देयर मास्टर पेंटिंग। तो उनका भी, बहरमान का भी ऐसा ही एक सपना था, दैट ही वांटेड टू पेंट अ मास्टर पेंटिंग जिसके थ्रू लोग उनको याद रखें।
And at the end, when he was dead, Stu called that as his master painting because that will always be remembered, क्योंकि उसे वो हमेशा याद रखेंगे जिसने जॉन्सी की जान बचाई. That painting saved the life of Jauncey. So this is the story of the this is the story of the chapter, the last leaf, which is dealing with themes of friendship. जॉन्सी एंड जो स्यू थे, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स. जॉन्सी जो है वो, स्यू जो है वो गुस्सा नहीं हुई. इट इज अबाउट द टीन एज ब्लूज. हम लोग जो टीन एज में हमें लगता है एवरीथिंग इज बबल, ह्यूमैनिटी. अब रहमान ने जो पेंटिंग दी थी, करी थी, दैट वाज ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी. despair यानी कि disappointment. Then as I said, there is one question ki why was the painting of Behman called as master painting, because that will always identify his presence, that will be always recognized. The next chapter which I'm doing right now is the happy prince. इसमें again, अगर मैं लास्ट लीफ का कहती हूँ, the theme based questions have come. Similarly, from this chapter also, the themes have come. Since, as I told you, you have one RTC from this book, two short questions, three marker, and one long question. इस चैप्टर से आया हुआ है काफी बार. नाउ देर इज, ये जो चैप्टर है, दैट टेल्स कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है, दैट्स अ सिंबल. Now, what is that symbol? Means it's a symbol of beauty because it was completely gilded with gold. पूरा gold से जड़ा हुआ था. And it was standing on a, मतलब कि थोड़ा सा जो है ऊंचाई पर, on the top, it was standing over there. It also symbolized the happiness because there was smile on the face. Secondly, there was one more bird which represents loyalty, friendship, compassion, selfless attitude. ये इसके जो है मेन मेन थीम्स है. और ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए ना, दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन. द swallow highlights the importance of friendship and support in achieving noble goals. Explain. The happy prince represents the idea that true happiness comes from selflessness and helping others. Elaborate. This can be there, right? So, यहाँ पर जो है, it is next is the story teaches the value of helping people who are in need. जिनको जो है नीड है, उनको हमें हेल्प करना चाहिए. So the story is all about a prince who is now not a living prince. वो जो है लिविंग प्रिंस नहीं है. ही इज जस्ट अ स्टैचू. लेकिन कहा जा रहा है कि उस स्टैचू के अंदर भी दिल है. इवन दैट स्टैचू जो है, इट इज हैविंग अ हार्ट. एंड हाउ इट इज, हाउ वी कम टू नो. एक स्वैलो जो है, इट हैपन्स दैट जो swallow है, he comes over there for shelter. The swallow is migrating to Egypt. जो swallow है, he is migrating to Egypt. वो इजिप्ट की तरफ जा रहा है. And there his friends are waiting near the river Nile. He wants to enjoy the sunshine over there.
बट इन बिटवीन उसको जो है यहाँ पर बीच में रुकना पड़ता। जब वो रात को यहाँ पर रुकता है तो वो जो स्टैचू है उसके नीचे जो आपके बना हुआ है वहां पर ही वॉन्ट्स टू टेक द शेल्टर। So when he finds a shelter and he wants to go and sleep over there, suddenly he sees that there is some water. वो स्काई में देखता है तो देर इज नथिंग, द स्काई इज क्लियर, बट सिंस देर इज वन मोर ड्रॉप ऑफ वाटर। अब उसको समझ नहीं आता है कि बारिश ये जो है वो कहाँ से आ रहा है। एट दैट टाइम वो देखता है दैट देर इज दैट स्टेचू विच इज फॉलिंग इट्स टीयर्स। अब उसको बड़ा अजीब लगता है। एंड दैट swallow asks the happy prince, that prince is a happy prince statue which is completely gilded with gold। वो उसे पूछता है कि why you are crying। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो अपनी स्टोरी बताता है कि why his name was happy prince। क्योंकि जब वो जिंदा था, when he was alive, he never had seen what is sorrow। उसको नहीं पता था दुख किसको कहते हैं, भूख किसको कहते हैं, पैसों की जरूरत किसकी होती है। He always enjoyed the life, and now as a statue he was now seeing all the sufferings of the people from that height। उस ऊंचाई से उसको हर एक इंसान के दुख के बारे में पता लग रहा था। और फिर उसने जो है एक एक करके जो है सारे लोगों का जो दुख है वो बताया। सबसे पहले उसने बताया कि देयर वाज अ चाइल्ड हु वाज गेटिंग, हु जो कि वो बीमार था। ही वांटेड वाटर, ही वांटेड जूस, बट उसके पेरेंट, उसकी मदर के पास पैसा नहीं था। शी वाज अ सीमस्ट्रेस। लेकिन जो अमीर लोग हैं, यहाँ मैं दोबारा बता रही हूँ व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्ड अमीर, बिकॉज देयर इज ऑलवेज दिस की जो रिच होते हैं दे नॉर्मली ह्यूमिलिएट द पुअर। वो पुअर को थोड़ा, उनको लगता है द पुअर आर लेथार्जिक, द पुअर डोंट डू दैट वर्क। तो जो अमीर लोग हैं दे आर मेकिंग फन। वो कह रहे हैं कि हो ये सीमस्ट्रेस पता नहीं मेरे ड्रेस को देगी या नहीं, दैट ड्रेस इज बीइंग गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर सम बॉल पार्टी। वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जो हो मेरे मतलब कि जो आईज हैं उनको निकालो और उन सॉरी, एक एक करके जो है ही वॉन्ट्स टू गिव ऑल द गोल्ड, ऑल द डायमंड, ऑल द जेम स्टोन्स विच ही हैज। तो वो उनको हेल्प करने के लिए बोलता है। द स्वैलो जो है इनिशियली इज नॉट इंटरेस्टेड। स्वैलो इनिशियली तो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि उसे तो जाना है। लेकिन उसके बाद जब वो बार बार जो है बोलता है तो स्वैलो मान जाता है एंड ही हेल्प्स नाउ वन बाय वन फॉर अ सीमस्ट्रेस, फॉर अ पर्सन हु इज राइटिंग अ प्ले राइट, जो कि कहानी लिख रहा है। आपके उस वाले चैप्टर में था ना, इफ आई वर गेराट, तो प्ले राइट, उसके लिए वो एक एक करके सारे के सारे जो अपने गोल्ड, अपने जो गिल्डेड जेम स्टोन्स वो सब दे देता है। उसकी जो आंखें होती हैं वो सब दे देता है। देर इज अ मैच स्टिक गर्ल जो कि बेच रही होती है, लेकिन शी हैज नॉट सोल्ड एनीथिंग क्योंकि उसके सारे स्टिक पानी में गिर गए थे। उसके पापा उसको डांटेंगे उसको हेल्प करने के लिए। अब स्वैलो जो है ही फील्स वेरी बैड क्योंकि नाउ द हैप्पी प्रिंस इज नो मोर हैप्पी, ही लुक्स वेरी अगली। एंड ऑल्सो वहां पर जो बच्चे बीमार हैं ठंड में, जिनको भूख लग रही है, उनको भी हेल्प करने के लिए वो सब कुछ दे देता है। द swallow नाउ रियलाइजेस द वर्थ ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस हु वॉज ट्रूली हैप्पी बिकॉज ही लव्ड अदर्स सेल्फलेसली। अब स्वैलो जो है उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता, ही डजंट वांट टू लीव दैट। जब उसके पास सब कुछ था वो जाना चाहता था, लेकिन जब उसके पास कुछ नहीं है तब वो नहीं जाना चाहता था। और यही एक ट्रू फ्रेंडशिप की जो है निशानी होती है।
अभी हमने लास्ट लेसन पढ़ा था, सॉरी लास्ट लीफ पढ़ा था, देयर माइट बी एन इंटरमिंगल्ड क्वेश्चन। इन दोनों चैप्टर से मिलकर एक क्वेश्चन बन के आ सकता है क्लास 9। और वो ये है कि उसमें स्यू एंड जॉन्सी दे वर फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस एंड जो स्वैलो है, दे आर फ्रेंड्स। सो ट्रू फ्रेंडशिप इज व्हेन यू, हम बोलते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दैट्स हाउ। मीन्स जब आपके पास पैसा है तब आपके पास 100 फ्रेंड्स हो ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको जरूरत हो और जो आपके लिए आगे खड़ा होता है वो आपका ट्रू फ्रेंड होता है। नाउ द स्वैलो जो है वो मतलब कि उसके पास रहता है, लेकिन उसे ठंड लग रही होती है। द स्वैलो इज अ बर्ड एंड इट वॉज ऑल्सो गोइंग टू अदर प्लेस जस्ट फॉर द हीट ओनली। वो गर्म मतलब कि अपने आप को हीट रखने के लिए तो जा रहा था, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। वहीं पर आसपास में जो खाना मिलता है वो वही खा लेता है। एंड ही स्लीप्स नियर द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, बट ही इज नॉट एबल टू सर्वाइव फॉर मोर। एंड वन डे आउट ऑफ कोल्ड द swallow dies। और वो जब डाई हो, मतलब जब वो मर रहा होता तो उससे पहले ही आस्क्ड द हैप्पी प्रिंस टू किस हिम। अब हैप्पी प्रिंस को लगता है दैट ही इज फ्लाइंग अवे एंड ही इज गोइंग, बट द बर्ड डाइज। आफ्टर दिस, मतलब अब यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है। यहां पर फिर एक और क्वेश्चन आता है। अगले दिन वो जो टाउन काउंसलर्स होते हैं, दोज हु आर इन द, मतलब जो वहां के गवर्नर, जब वो वहां आते हैं एंड दे लुक एट द हैप्पी प्रिंस, इंस्टेड ऑफ उस प्रिंस के स्टैचू को अच्छा करने के बजाय वो कहते ओ माई गॉड हाउ अगली द स्टैचू इज, इसको नीचे गिरा दो। ये क्या दिखाता है? व्हाट डज इट शो? व्हाट डज इट शो? दैट पीपल आर जजमेंटल। पीपल जज यू ऑन योर फिजिकल अपीयरेंसेस। जिस प्रिंस को उन्होंने इतना बड़ा खड़ा किया था, आज उसका जब, मतलब कि उसकी व्हेन इट वाज लुकिंग अगली, तो दे वांटेड टू थ्रो इट ऑफ। पीपल डोंट केयर फॉर यू। नेक्स्ट, वो जो हैप्पी प्रिंस है उसका एंड वो जो स्वैलो है, उन दोनों को वहां से हटा दिया जाता है। एंड फॉर्चुनेटली वो जो स्वैलो होता है उसकी बॉडी भी वहीं पे होती है जहां जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है उसको तोड़ा जाता है। लेकिन उस स्टैचू के अंदर से दे फाइंड अ हार्ट। और जब उस हार्ट को वो लोग, दे वांटेड टू पुट इनटू द मेल्ट, मतलब कि उसको मेल्ट करना चाहते हैं, तो द हार्ट डज नॉट मेल्ट। व्हाई? बिकॉज इट्स अ, मतलब कि गोल्डन हार्ट। गोल्डन मतलब गोल्ड का बना नहीं, इट मीन्स इट इज अ हार्ट विच सर्व्ड अदर्स, विच हैड गुडनेस इन दैट, जिसके अंदर अच्छाई भरी हुई थी। और वो जो वहां पर मेजन्स होते हैं वो उसको उठा के फेंक देते कि भाई ये तो हमसे टूट नहीं रहा, इसको बाहर फेंक दो। ओवर द हेवन। अब यहाँ पर ये जो हेवन है उसको क्यों बोला गया है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भगवान उन हर एक इंसान को हमेशा प्यार करता है जो दूसरों की मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु आर सेल्फलेस। भगवान जो है वो इम्पार्शियल है। सो ओवर द हेवन, गॉड जो है अपने मैसेंजर को बोलते हैं दैट प्लीज बताइए, जाओ और ऐसे लोगों को लेकर आओ, दोज हु आर द मोस्ट ब्यूटिफुल। नाउ हेयर ब्यूटी इज नॉट समथिंग योर फिजिकल अपीयरेंस, ब्यूटी इज फ्रॉम योर हार्ट। एंड जो एंजल्स हैं, जो उनके मैसेंजर्स हैं, वो जो है उस स्वैलो एंड उसके हैप्पी प्रिंस के हार्ट को लेकर आते हैं।
एंड गॉड कहता है कि दीज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, बिकॉज जो हैप्पी प्रिंस था ही हैड सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर अदर्स, एंड स्वैलो उसने तो अपने आप को ही दे दिया दूसरे के लिए, फॉर हिज फ्रेंड. So this is the chapter, The Happy Prince. You can have the symbol, you can have the character sketch of Swallow, of Happy Prince. Then you may have one or a short question कि किसको मतलब कि क्या help किया था, but in from this question in the chapter you can definitely expect a theme based question or maybe a message. And as I have written so many messages, God loves those who are selfless. Then there is one more, like यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, the story teaches the value of helping those in need regardless of your own circumstances. It is about the responsibility, हमारे अच्छे actions. ये सारे इसके जो है themes हैं, सॉरी messages हैं. And themes में already I have written explain, elaborate, that is symbolizes the idea of happiness, that is when you are selfless, loyalty, friendship, that is one more thing. So that's the chapter, The Happy Prince. So with this we have completed three chapters today, that is the last leaf, The Happy Prince, and In the Kingdom of Fools.